Okay. We are starting with concept as I discussed 12.12 and 12.13. That are the last concept we discussed. Please, you all will revise all the concepts and then you can give the exam. Next week I'll be doing solving of level 1. Right. So we are discussing last time, if you all remember, I had discussed accelerated pure rolling. Okay. So today I'll be discussing 12.12. It is called as angular impulse. Okay. Does anyone know what is linear impulse formula? Integration of f bar dot dt. Yeah. J bar, that is integration of f bar dot dt. Or it could also be written as f average into time, which was also called as change in momentum. That is mv final bar minus v initial bar. And remember, for this I had given you an impulse momentum equation. Impulse momentum equation was what? Remember, p initial plus minus j is equal to p final. This I had given it to you all, and I was more comfortable in applying this equation only. Similarly, if I say what is angular impulse, उसको बोलेगी जे आर बार, जे रोटेशनल, ठीक है ना? एंगुलर impulse, जे रोटेशनल will be integration of torque dot dt, that is average torque into time, that is change in angular momentum, that will be I omega final bar minus omega initial bar. Hello, Baba, clear है ना? Yes, sir. Same thing, huh? So if I make an angular impulse momentum equation, will become initial angular momentum plus minus angular impulse is final angular momentum. ये हम यूज करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा. अच्छा, if you remember, angular impulse is torque into time, बराबर. और टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस into time. But what is force into time? What is force into time? J. J. So J into R perpendicular. So angular impulse JR is J into R perpendicular. This is also very important. Hmm? Yes or no? Clear है? J into R perpendicular. JR. ठीक है. अच्छा, इधर से मैं और दो फॉर्मूलाज बनाता हूँ. Pay attention to me. Suppose इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो J का जो फॉर्मूला रहेगा, आपको मालूम है ना, एम बी फाइनल माइनस एम बी इनिशियल, और वी फाइनल को हम लोग वी पकड़ लेते हैं, तो J को लिखेंगे एम वी, तो वी को लिख सकते हैं J बाई एम. हेलो 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 हेलो, यस और नो? क्लियर है ना ये? अच्छा, वैसे ही सपोज ओमेगा इनिशियल 0 है एंड ओमेगा फाइनल इज ओमेगा, तो यहाँ पर J क्या बनेगा? जे आर क्या बनेगा? आई ओमेगा फाइनल minus omega initial. So JR is going to become I into omega, no? Okay. But what is J into R? JR is J into R perpendicular is I omega.
तो ओमेगा को क्या मैं लिख सकता हूँ, जे इंटू आर परपेंडिकुलर बाय आई। हेलो हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? यस और नो? Yes, sir. So these two formulas are again very important. Very important formulas. V is J by M and omega is J R, that is J into R perpendicular by I. ठीक है ना? अच्छा, एंगुलर इम्पल्स पहचानने के तीन केस भी है, जैसे लीनियर इम्पल्स पहचानने के भी तीन केस थे, लीनियर इम्पल्स के तीन केस थे। पहला केस वाज, अगर आपने बोला तो इट इज एवरेज फोर्स इनटू टाइम। केस 2, if you remember, it was J was integration of F dot dt, and case 3 was, remember, it was area under ft curve। भाई सही है, ये हमने कर चुके हैं। तो वैसे ही यहाँ पर केस 1 क्या रहेगा एंगुलर इम्पल्स के लिए, जे आर के लिए, इट इज टॉर्क एवरेज इनटू टाइम। केस 2 क्या रहेगा, जे आर इज इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क एवरेज इनटू dt, एंड केस 3 क्या रहेगा, व्हाट इज इट इज एरिया अंडर टॉर्क टाइम ग्राफ। हेलो 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 हेलो, यस और नो, क्लियर है ना? ये सब चीजें, this is a very important page which we have done right now. Remember all these things. अच्छा, लीनियर इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स इस्तेमाल कब किया जाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। देखो ना, टाइम है, यहाँ पर भी टाइम है। तो जब भी क्वेश्चन में टाइम के बारे में बात करेगा ना, तो यू हैव टू यूज इधर लीनियर इम्पल्स इक्वेशन और एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन। ओके, जरूरी नहीं है एवरी टाइम you have to use, but most of the times I have seen the sums that whenever a force is applied and time is asked, you have to use impulse momentum equation. हेलो, क्लियर है ना? Yes, sir. इसको इसको आप लोग ये कर लो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दिस वाज ओनली द पेज व्हिच वाज रिक्वायर्ड, सो इफ यू रिमेंबर इट विल बी बेटर। यू जस्ट हैव टू मेक एन एनालॉजी, एंड ये चीजें आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें important। अब हम लोग इसके सम्स पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर just 12.11. Can you see the slides, right? Green 12.11. Yes, sir. Question number 1. A cylinder is rolling down on a rough inclined plane. So there is a rough inclined plane, and the cylinder is rolling down. The angular momentum about the point of contact remains constant. So point of contact ये है ना? Okay. कौन से forces act करेंगे बता सकते हो आप लोग? आपको पता ही है, लास्ट टाइम मैंने बताया था। Mg sin theta and friction. mg sin theta and friction will act over here. So this is the center. I want to find angular momentum about the point of contact, means the angular momentum about point P. Okay, देखते हैं। Can I say this formula JR is J into R perpendicular, या तो J into R perpendicular से बेहतर है? Can I write torque dot time, which is I omega final minus omega initial, yes or no? Which is nothing but change in angular momentum, yes or no? Which is final minus initial, but initial angular momentum 0 है because initially नहीं था वो, तो starting from rest. So can I write J torque average into time
is L only. Hello. Acha, what point ke across do you require the angular momentum, or what point P? So torque also has to be about point P. Can anyone tell me what is the torque of this whole forces, all the forces about point P? Come on, fast. Torque. कितना torque रहेगा? mg sin theta into r. Into R. बस एक ही है. Friction का torque तो 0 है. Into time will become L. So L का formula क्या हो गया? About the point P will become mg sin theta into R into T. Can I say L at point P is proportional to T because ये सब चीज तो constant है. क्या आप कहेंगे is the angular momentum constant or variable? Is this equation constant or variable? Hello. ये equation अरे function of time है ना भाई. Variable. तो variable हुआ ना because time तो बढ़ता ही जाएगा. So it is a variable. It is a variable and the statement over here is false. It is not constant. It is variable. ठीक है ना? Hello. Yes or no? अरे clear है? Yes. ये चीज है. How to do? अच्छा, अगर ये रफ ग्राउंड हुआ कि स्मूथ हुआ, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? अगर ये रफ हुआ या स्मूथ हुआ? No sir. हाँ. अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं अबाउट पॉइंट पी तो फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. बट वो रोलिंग नहीं कर पाएगा. हेलो. हेलो. यस और नो? Yes, sir. रोलिंग नहीं कर पाएगा वो, बिकॉज रोलिंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी है. बट ये फॉर्मूला वही रहेगा चाहे सरफेस रफ हो या सरफेस स्मूथ हो. दिस आंसर विल रिमेन द सेम फॉर बोथ ऑफ देम. बराबर है? ठीक है ना? तो फर्क नहीं पड़ेगा whether the surface is smooth or rough. It is not going to be changed. Question number 2. Now, very good question. Question number 2. It is being asked in the examination many times. इसको थोड़ा ध्यान रखना. अच्छा, मैंने आपको दो फॉर्मूलेस बताए थे. अगर आपको याद रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दो फॉर्मूलेस बताए थे. V was J by M and omega was JR, that is J into R perpendicular by I. Do you remember, right? नहीं याद है ना? A solid sphere and a hollow sphere both are of the same mass. मतलब इसका मास भी m है. Mass m, mass m. Radius r, radius r are hit by a q at a height h above the center, in which case linear velocity will be more. What is the formula for linear velocity? J by m. हेलो. तो ना एक झटका इसके ऊपर भी लग रहा है, इसके ऊपर भी लग रहा है, और दोनों का J सेम है ना? हेलो. Yes sir. अच्छा, दोनों का मास भी सेम है. क्या दोनों का मास भी सेम है? हाँ सेम है. तो किसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा? Can I say V1 in the first case and V2 in the second case will be the same? Hello. भाई क्यू बॉल्स, क्यू स्टिक से हम लोग हिट कर रहे हैं, दोनों को सेम हिट कर रहे हैं, दोनों का मास भी सेम है, तो V दोनों का सेम रहेगा. P पॉइंट. ये डन. एंगुलर वेलोसिटी विल बी मोर. ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? J into R परपेंडिकुलर बाय I. J दोनों का सेम है, R परपेंडिकुलर दोनों का H है, देख सकते हो. फ्रॉम द सेंटर एंड I. पहले वाले का I कितना है? पहले वाले का I कितना है? I कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? 2 by 5 mr square. दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? ये J into H ऊपर का सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 2/3 mr square. This is going to become 5/2 JH by mr square, and this will become 3/2 JH by mr square. Who is more? Who is more? 5/2 ज्यादा है कि 3/2 ज्यादा है? 5/2. Omega 1 will be greater than omega 2. Yes or no? Yes, sir. Okay. C point. किसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? Half I omega square.
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल स्क्वायर बाय 2 आई। हेलो यस और नो? एल स्क्वायर बाय 2 आई लिख सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज एल? एल इज कांस्टेंट ना? व्हाई एल इज कांस्टेंट? व्हाई एल इज कांस्टेंट? दोनों का। हेलो Because J and R perpendicular are constant. ये एल जो है वो जे इंटू आर परपेंडिकुलर होता है ना? हेलो, एल इज जे इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, विच इज सेम फॉर बोथ ऑफ दैम। कैन आई से अगर ये कांस्टेंट है ना ऊपर वाला, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन विल बी इनवर्स टू आई। किसका आई दोनों में से ज्यादा है? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? सॉलिड स्फीयर का कि होलो स्फीयर का? Hollow sphere. होलो स्फीयर। तो I2 will be greater than I1, so kinetic energy 1 will be greater than kinetic energy 2. Yes or no? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये चीज का ध्यान रखना। So this is also okay. So I hope you all have understood. I hope you all have understood this concept of angular impulse. Most of the time, these kind of questions come. These kind of questions. This is a very important question, which is asked in the JE also. इसका ध्यान रखना होगा। अब I think so. This is over. This whole thing is over. This concept is over. Now I'm going to go to another concept. जिसके कोई questions तो है नहीं, but I will deal with the concept last part and then we will finish it off. ठीक है ना? तो एक और एक concept है that is 12.13 पर, that is called as toppling. Concept सीख लो, मैंने पहले भी सिखा चुका हूँ. I'll deal with it and if sums are there, sums तो है नहीं इसमें generally, but we'll take 1-2 sums and solve it. ठीक है? टॉपलिंग का मतलब क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो। सपोज एक नैरो बेस वाला ब्लॉक रखा है और यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, और ये एक ब्रॉड बेस वाला ब्लॉक है, इधर भी फोर्स लगाया। Who has the tendency to topple first? Who has the tendency to topple first? A और B? A. A. तो ये चीज याद रखना है कि जिसका बेस छोटा रहेगा ना, जिसका बेस छोटा रहेगा वो जल्दी से टॉपल हो जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता भी रहेगा, कोई आपने ओके प्रैक्टिकली देखा भी है। तो जिसका बेस छोटा होगा वो जल्दी से टॉपल होगा। ऐसे क्यों होता है? अच्छा, आपको मालूम है कि अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये यहाँ पर सपोज हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर सपोज एक फ्रिक्शन आएगा mg, एंड आपके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा। बराबर है क्या? हेलो, अच्छा Yes. मुझे मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताओ कि सही है ना, अगर मैं टॉर्क अबाउट सेंटर पकड़ता हूँ, टॉर्क अबाउट सेंटर में पकड़ता हूँ, तो कैन एनीवन टेल मी हु इज प्रोड्यूसिंग टॉर्क्स अबाउट द सेंटर? बड़ा एफ का टॉर्क कैसे रहेगा? क्लॉक के एंटी क्लॉक बड़ा एफ का Clockwise. कैसे रहेगा? छोटा एफ का टॉर्क कैसे रहेगा? Anti-clockwise. छोटा एफ का टॉर्क कैसे रहेगा? Anti. Clockwise. ऐसे ही रहेगा ना यार, Oh, yes, sir. फोर्स इनटू। अच्छा, एन और एम जी का टॉर्क क्या है? एन और एम जी का टॉर्क क्या है अबाउट द सेंटर? 0. 0। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये बॉडी के ऊपर थोड़ा सी भी अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ना, वो टॉपल हो जाएगा ना ऐसे। हेलो,
क्या ऐसे होता है क्या? आप एक कोई भी फ्लैट सरफेस बुक है, आपका मोटा सी बुक है डीसी पांडे का, उसके ऊपर थोड़ा सी ऊपर फोर्स लगाते हैं तो टॉपल होना शुरू होता है? नहीं ना, ऐसे नहीं होता है। हेलो हेलो, इसका मतलब ये डायग्राम में कुछ गलती है। कोई बता सकता है व्हाट इज द मिस्टेक इन द डायग्राम? N does not pass through the center of mass. यस, एन यहां से पास नहीं होगा, एमजी तो यहां से ही पास होगा। फोर्स ये है, फ्रिक्शन ये है, बट एन कौन सी साइड रहेगा? सेंटर के कौन सी साइड पर है? लेफ्ट साइड पर है क्या राइट साइड पर है? एन एन राइट। Right. इस तरफ, एनी डिस्टेंस पे जितना ज्यादा फोर्स लगाएगी उतना ज्यादा शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये दोनों ऐसे टॉर्क बना रहे हैं और ये अबाउट द सेंटर ऐसे टॉर्क बना रहा है। ये अपना पूरा जान से मेहनत लगा रहा है ताकि एफ और छोटा एफ दोनों क्लॉकवाइज बनाए और मैं एंटी क्लॉकवाइज बनाऊंगा। अंडरस्टैंड? हेलो? दिस इज व्हेन आई स्टार्ट इंक्रीजिंग द फोर्स। एनीवन टेल मी व्हेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग क्या होने वाला है? कोई बता सकता है? क्योंकि एन का संभावना शिफ्ट है ना, इधर एन शिफ्ट हो रहा है ना, ऐसे 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 shift कर रहा है कि नहीं अपने आप को? यस और नो? तो यहां पर कोई बता सकता है व्हेन द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग व्हाट इज द डायग्राम? हेलो? वेयर इज एन? वेयर इज एन पासिंग थ्रू? कम ऑन मैन। At the end. एट द एंड, इधर से पास होगा ताकि ये मैक्सिमम टॉर्क बना पाए। ये तो ऐसे बनाएगा, ये तो ऐसे बनाएगा, ये बोलेगा मेरा तो मैक्सिमम टॉर्क इधर ही है ना, दैट इज दिस लेवल। तो कैन आई से एन को इतना स्पेस मिल रहा है शिफ्ट होने का? हेलो? यस और नो सर? Yes, sir. तो कैन आई से जितना ज्यादा एन को स्पेस मिलेगा शिफ्ट होने के लिए उतना ज्यादा वो बचा पाएगा टॉपलिंग करने से। हेलो, आर यू कैचिंग माय वर्ड्स मैन प्लीज? जितना ज्यादा एन को शिफ्ट करने का स्पेस मिलेगा, ओके, ब्रॉडर स्पेस मिलेगा, तो एन ज्यादा शिफ्ट होगा तो जल्दी से टॉपल नहीं होगा। कैन गेट और नॉट? हेलो? Yes, sir. ओके, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ब्रॉडर बेस होना चाहिए। ब्रॉडर बेस में उसको इतना जगह मिला ना शिफ्ट होने के लिए नॉर्मल रिएक्शन, और नैरो बेस में तो इतना ही जगह मिला शिफ्ट होने के लिए। बराबर है क्या? अच्छा, सपोज मैं आपसे कहूं कि एक एक व्हील है, व्हील, टायर है, टायर। हमको मालूम है ये एमजी होता है, ये एन होता है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बराबर है क्या? और यहां से अगर मैं एक फोर्स लगाऊं तो एन को शिफ्ट होने के लिए कितना स्पेस मिला बॉटम पे? बहुत कम, नेग्लिजिबल। हेलो? हेलो? क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यार यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो एन तो यहाँ से पास हो रहा है, तो एन को कोई जगह ही नहीं मिला शिफ्ट होने के लिए। इसलिए अगर हम एक टायर पे छोटा सी भी फोर्स लगाते हैं तो वो टॉपल करना शुरू करता है, रोल करना शुरू करता है। डिड यू अंडरस्टैंड द मेथड? दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, क्योंकि एन को स्पेस ही नहीं मिलेगा शिफ्ट होने का। तो एन को अगर स्पेस नहीं मिलेगा शिफ्ट होने का तो एफ थोड़ा सी भी फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी आगे बढ़ जाएगा। करेंगे और नॉट? ये चीज है। सपोज अगर मैं बात करूं, सपोज अगर मैं बात करूं, ये बी है और ये ए है, and if I take torque about this point P, torque about this point, can anyone tell me what is the torque about this point? Come on man, fast, tell me. F into B, hello, minus mg into A, बाकी सबका टॉर्क जीरो है ना, बोलो। हेलो? Yes, sir. if you take torque about point B,
समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट P, तो यही तो है, दूसरा कोई टॉर्क थोड़ी है. और you can write that F into B is mg into A. So what is A का value? F into B by mg. Hello, hello. Yes or no? What is the A? What is A? This is the space of shifting, na? Yes or no? Space of shifting. यानी से जितना A ज्यादा रहेगा उतना जल्दी से टॉपल नहीं होगा, जितना A छोटा रहेगा उतना जल्दी से टॉपल हो जाएगा. Did you understand this concept? हेलो Yes, बाबा. sir. हाँ ठीक है. अब इसके ऊपर अगर मैं, सम्स तो है नहीं, देयर आर 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स इन डीसी पांडे दैट ओनली वी विल सी, सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. देखो ये क्या बोलता है कि एक क्यूब है, a cube of side A and a mass m is rest on a rough horizontal surface. So it is a rough horizontal surface. Okay, a horizontal force applied at 3a by 4 above the base. So ये फोर्स लगाया हमने 3a by 4 above the base. बराबर क्या? अब what is the minimum value of F required for which the cube begins to tip off on the edge? Tip off on this edge मतलब topple होना शुरू करेगा, मतलब it is on the verge of toppling. ठीक है, और मुझे ये F का वैल्यू मिनिमम वैल्यू चाहिए. एकदम इजी है. देखो क्या होने वाला है, mg यहाँ से पास होगा, ये फ्रिक्शन है. when it is on the verge सबको मालूम है n यहाँ से आएगा. ये पॉइंट को P पकड़ता है. yes or no? हेलो yes or no? Yes, sir. Can I say it is on the verge of toppling? मतलब anti-clockwise torque and clockwise torque should be same, na? Can anyone tell me who is producing clockwise torque? F into. F into 3a by 4. And who is producing anti-clockwise torque about this point P? mg into a by 2 ना. हेलो, yes or no? अरे बाबा बोलो. Yes, sir. बाकी दूसरे का तो टॉर्क जीरो है बिकॉज बोथ आर पासिंग थ्रू पॉइंट P. ये इसका टॉर्क तो जीरो है, इसका भी टॉर्क जीरो है बिकॉज they both are passing through this point ना, तो perpendicular distance नहीं रहेगा. So at the verge of toppling, anti-clockwise torque and clockwise torque should be the same. So F minimum कितना होना चाहिए? A उड़ा दो, 2 2 जा 4 हो गया, ये हो जाएगा 2 mg by. yes or no? हेलो बोलो. Yes, sir. तो मिनिमम फोर्स इतना होना चाहिए ताकि वो टॉपल कर पाए. अगर इससे कम रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा एडजस्टमेंट करेगा ताकि उसको टॉपल होने नहीं देगा. इतना या इससे ज्यादा होगा तो द बॉडी विल बी टॉपलिंग. दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग. क्वेश्चन नंबर या So how did it come A by 2? क्यूब है ना बेटा, ये तो ए होगा ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. देयर इज अ क्यूब ऑफ साइड ए. they have given you in the question. Okay, sir. It's given this side is a ना, this side is also a, side is this is also दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है. सॉल्व्ड एग्जांपल में देखो, एग्जांपल 12.32. इट इज एग्जांपल 12.32 सॉल्व्ड एग्जांपल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इट इज अ क्यूब ऑफ साइड ए. ओके ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन. very happy rotational motion is over. We can start with our basics next time. ठीक है ना. ओ लेवल 1 वो तो हो जाएगा, पर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो आपको सिर्फ बार बार वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है एंड देन यू विल गेट इट. ठीक है. क्वेश्चन
Example 12.33. A uniform cylinder of height h and radius r. So there is a cylinder of height h and radius r placed with a circular face on the rough inclined plane, and the inclination is continuously increased. If mu is the coefficient of friction, then under what condition the cylinder will slide before toppling and topple before sliding? देखो इधर क्या बोल रहा है ये एक सिलेंडर है, सॉरी इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर हमने सर्कुलर फेस ऑफ द सिलेंडर को ऐसे रख दिया. Are you getting it? बराबर है ना? Yes, sir. सपोज इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, तो मुझे तो पता है कि टॉपल करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से पास होगा. ये तो सबको मालूम है, इट इज mg sin थीटा. एंड ये रहेगा mg cos थीटा. You know it, clearly you know it. And this is friction. Okay. अच्छा, तो बता सकते हैं फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? Mu mg cos theta. मैक्सिमम वैल्यू. स्लाइडिंग के लिए कैन आई से इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग? या स्लाइडिंग के लिए कौन ज्यादा होना चाहिए, कोई बता सकता है? वर्ज छोड़ दो, स्लाइडिंग के लिए Sin कौन theta. शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? स्लाइडिंग करने के लिए, टॉपल नहीं करना, शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन ना. फॉर स्लाइडिंग mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन mu mg cos थीटा. हेलो, ताकि वो नीचे स्लाइड हो जाए. हेलो, mg mg तो कैंसिल हो गया. So can I say tan theta should be greater than mu? Hello? Yes or no? Yes, sir. अच्छा, टॉपलिंग के लिए क्या कंडीशन है? अभी पढ़ाया था मैंने, टॉपलिंग के लिए क्या कंडीशन है? ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग. टेल मी क्या है टॉपलिंग का कंडीशन? ये हाइट है ना, तो ये हाइट कितना रहेगा? h/2. और ये तो आ रही है ना, और ये पॉइंट पर अगर हमको टॉपलिंग कराना है तो कैन आई से mg sin थीटा इनटू h/2 should be greater than mg cos थीटा इनटू r ना. हेलो, कर चुके हैं ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan थीटा शुड बी 2r/h इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा. बराबर है क्या? यस और नो? Yes, sir. अब मेरे को ये नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है कि when will it slide before toppling? ठीक है, तो स्लाइड बिफोर टॉपलिंग मतलब क्या? हेलो, विच कंडीशन शुड बी ओबेड? पहले विच कंडीशन शुड बी First ओबेड? condition. फर्स्ट कंडीशन शुड बी ओबेड पहले. मतलब tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, मतलब म्यू छोटा होना चाहिए ना. हेलो यार, ये कंडीशन सबसे पहले ओबे होना चाहिए ना, ये कंडीशन बाद में ओबे होना चाहिए. पहले ही स्लाइड हो गया, बाद में टॉपल होगा. मतलब tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, मतलब म्यू कम होना चाहिए, तो म्यू शुड बी लेस. हेलो, म्यू शुड बी lesser than the second condition. Are you getting it? क्योंकि ये कंडीशन पहले ओबे हो गया ना, म्यू कम हो गया ना पहले कंडीशन में, सेकंड कंडीशन से, तो म्यू कम होना चाहिए और 2r/h ज्यादा होना चाहिए. ऐसा और नो? हेलो
हेलो हेलो बोलो यार, सही है ना? पहले कंडीशन में म्यू कम है tan थीटा से, सेकंड कंडीशन में 2r/h कम है, तो कह रहा है स्लाइडिंग पहले हो रहा है, मतलब पहला कंडीशन पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, म्यू शुड बी लेसर देन दिस आंसर ना। हेलो खाना समझ में आया क्या? यस और नो? अच्छा ठीक है, सेकंड वन कह रहा है टॉपलिंग पहले होना चाहिए। नाउ यू टेल मी व्हाट शुड बी द कंडीशन। हेलो कम ऑन मैन, प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ टॉपलिंग। 2r/h is lesser हाँ than 2r/h कम होना चाहिए यार, 2r/h कम होना चाहिए किससे? म्यू से। तो 2r/h अगर कम रहेगा तो पहले वो टॉपल कर जाएगा और बाद में स्लाइड होता जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग बाबा? sir. हेलो, ये चीज का ध्यान रखना है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। लोगों को ये समझता नहीं है बिफोर टॉपलिंग, तो जो पहले कर रहा है उसका कंडीशन पहले ओबे करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन आवर रोटेशनल डायनेमिक्स। इट्स ओवर। तो मंडे से वी कैन स्टार्ट विद आवर लेवल 1 एंड लेवल 2 अभी हो जाएगा, अभी कोई इजी चैप्टर है एकदम। सो वी नीड टू रिवाइज दिस 12 concepts, 12 13 whatever concepts I have given it to you, ये पेज पर लिख के शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज कर लो बार बार। एक बार आपने इसको रिवाइज कर लिया तो बार बार इसी को ही रोटेट करना है, घुमाना है, एंड यू विल बी एबल टू डू लेवल 1 लेवल 2 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एडवांस, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये चीज हो चुकी। Now after doing rotational motion we'll do gravitation which was done in 11th standard. अच्छा भाई एक बात मुझे बताओ, नेक्स्ट वीक यू ऑल हैव केसी पीपल हैव एग्जाम ऑफ द एग्जामिनेशन? What is the time of the examination? Do you know the timing of your exam? 12 to 1. It is 12 to 1. Okay, चलो ठीक है, थैंक यू, ठीक है, बाय बाय बाय। Bye sir, thank you. Bye, sir. Thank you.